Hello. Hi, Swati. Hi, how are you? Just give me a minute. I need Sure. my camera is little bit. Okay, it's fine. So, Swati, today is the Teachers' Day, and like this day is a great reminder to remember all the teachers that have taught us something or the other. And who else Absolutely. can be a better teacher than parents? So, you know, but through this journey, they don't just teach us, but learn through it too. So Correct. today Absolutely. we want you to like make us go through this journey and how parenthood feels like you. So before beginning, I would like to introduce you. So Thank Swati, you. Swati is a parenting coach and take workshops for smart parenting tips and tricks too. She is a mom of two munchkins and founder director of atusi.com. If I'm not Yeah, mispronouncing. it's A to Z. So yeah, QC is fine. A2C.com, a platform for creative writing classes, and it also helps kids to write their own books. So, welcome, Swati. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So, Swati, first to begin with, I would like you to talk about what are some of the key life skills and values that parenthood teaches. So, first, when I talk about life skills, there are a lot of life skills we learn in our journey of parenting or parenthood. A few things which I learned as a parent of two children was one was, of course, prioritize on your work as well as your children, because both are of prime importance, but who needs what, so is very important. And along with prioritize, try to do a lot of time management, because when you do a scheduling or when you do a routine formation for yourself, then obviously, like I know my children are going to come from school by 3:30. So before 3:30, I wrap up with my work or probably meetings or whatever XYZ, even recordings. Since I'm a blogger, so obviously recordings, everything goes before my children come. After that, then during the time when I am taking my classes or probably when I am on busy on my creative writing, then my children are scheduled for going to extra classes. And evening, we make sure that we are together in the park playing or whatever. So it's very important as us parents, we stick with what we want to do. Of course, I would never say that do away with your career life, because that is very, very important. So both the things are important. A mother is also a motherhood journey is very important. Parenthood is very important. So how beautifully you prioritize, how beautifully you manage your time is very important. The third thing which I always feel is financial. Manage your own budget. As a parent, you just don't get carried away with your children and हाँ मेरे बच्चे ने बोला है तो मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, वो सॉन्ग में अच्छा लगता है, but real life में it's important for you and your child to understand the importance of that money. That बिना इस month नहीं हो सकता. Since we've already bought a toy for you, maybe next month for sure we will certainly try it, or put it as like maybe it is like a work driven, like okay, let's you achieve a scholar badge or probably complete your exams. After your exams we might go there. So it's very important to for us as parents to tell them that this is where we are, that rather than getting carried away with the children. So these are the most important skills which I feel as parents it's important for us to know. Tell our children about it. Yes, surely great share. Like आपके लिए नहीं, बाकी पेरेंट्स के लिए भी जो ये सब देख रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सारे स्किल्स बहुत मैटर करते हैं. आप किसी भी स्किल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. आप Correct, पेरेंट correct. कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. प्लस अपब्रिंगिंग इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ थिंग कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो आप उधर हाँ. भी आपको टाइम देना है. तो प्रायोरिटाइजेशन और टाइम मैनेजमेंट स्किल तो लाइक पेरेंट्स आर प्रो एट दिस.
now, if we move forward, then how does this experience differ for your first child, and then when you conceive again and you have another child? So how does the experience differ for both? Experience is very different. In my first child, I was super excited and super nervous. So my anxiety levels were here because obviously I was a first time mom. I was looking for answers everywhere. So I did not know how to latch my child. I did not know if my child is crying at night, what to do. How many times in a day should I feed? Is it okay to just do a breastfeed? Is it so? There were a lot of questions. I was juggling with a lot of questions. I was very anxious. I was overprotective about my daughter. She was like always with me on my bed. She has to be there with me. But when I was a second time mom, obviously my experience mattered and I was less protective. I knew this was right, this was not right. It was supposed to be done, it was not supposed to be done. And by that time, I've already, taken one milestone for my own daughter. So I learned from my own mistakes as well. Whatever mistakes I did with my first child, with my second child, I did not repeat the same mistakes. Probably my parenting was better, easier, calmer. But the most important challenge you face for the second child is your sibling one, your sibling rival or your sibling things. So for my second child, I was making sure that I was giving him adequate time, but at the same time, I made sure that my older one was always my top priority because the little one will never realize I was there with him or not. But my older one is seeing that I'm more giving more time to the little one. So that is a very important thing that as for other parents also, that if you are a mother of two and you conceive the second baby, make sure you give lot of time to your first one. पहले बच्चे को आपका टाइम का ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसको मतलब उसको छोटी छोटी चीजें आपकी याद रहेगी. छोटा वाला तो भूल जाएगा क्योंकि छोटे वाले को तो कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो तो बेड पे है, उसकी तो मेमोरी अभी है ही नहीं. तो क्योंकि 3 साल तक उसकी कोई मेमोरी नहीं रहेगी और या उसको कुछ याद नहीं रहेगा. बट जो बड़े वाले हैं उनको सब कुछ याद रहेगा और वो ज्यादा याद करेंगे. तो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ द पेरेंटिंग. एंड ऑफ कोर्स छोटे वाले जल्दी इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि आप ज्यादा उसको माइक्रो मैनेज नहीं करते हो, छोटी छोटी चीजों में उसको टोकते नहीं हो, तो छोटा वाला जल्दी बड़ा हो जाता है और बड़े वाले तो हमेशा मम्मीज बेबीज होते हैं या पापाज बेबीज होते हैं. Yes, I agree. I'm the older child of my house, so I know how this all goes. Then, Absolutely. then like parenthood as a whole is a learning journey. लेकिन कुछ ऐसा होता है specifically like जब आपका बच्चा चलना शुरू करता है या वो जब स्कूल जाता है कि कुछ माइलस्टोन्स ऐसे होते हैं जो शायद आपको ज्यादा लर्निंग देते हैं as compared to जो हैबिचुअल चीजें होती हैं. तो ये how explained with you? So कुछ कुछ चीजें तो बहुत जरूरी होती है. मतलब जैसे पहले बार जब आप अपने बच्चे को हाथ में लेते हो, दैट इज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस. तब हर एक माँ के लिए होता है कि वो इतना इमोशनल एक्सपीरियंस होता है कि इस बच्चे ने मुझे माँ बनाया. तो वो पहली चीज कि जब पहली बार अपने बच्चे को आप गोदी लेते हो या अपने पास लेते हो या उसको पहली बार आप दूध पिलाते हो, तो उसको वो फील जो होता है वो आई थिंक मतलब वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है एक माँ के लिए. पहली बात. सेकेंड होता है जब वो पहली बार चलना शुरू करता है कि चलो पहली बार बोला या पहली बार चला, ये दोनों चीज, या पहली बार माँ बोला पापा बोला वटेवर तो वो बहुत बड़े बेटा बोलो बेटा बोलो बेटा बोलो. तो पहली बोलना और पहला चलना मतलब बहुत बड़ा माइलस्टोन है एज पेरेंट्स. थर्ड माइलस्टोन होता है पहला दिन स्कूल का. बच्चा तो एंशियस है, माँ सबसे ज्यादा एंशियस होती है कि पहली बार आप उस मोमेंट पे आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को ऐसे लाइक भेज रहे होते हैं कि अब वो दूसरों के किसी और के पास जाएगा. हाँ, पहली बार वो डिटैचमेंट होता है क्योंकि अभी तक तो बच्चा आपके पास ही है, तो पहला डिटैचमेंट होता है वो पहला दिन का स्कूल. उसके बाद होते हैं बर्थडे के माइलस्टोन्स. उसका 13वां बर्थडे, उसका 16वां बर्थडे, उसका 18वां बर्थडे, उसका 10वां बर्थडे. तो ये 4 बर्थडे जैसे 1 to 9 ऑब्वियसली बर्थडेज आर इम्पोर्टेंट. बट वो जब 10 years का हो गया, अच्छा वो डबल डिजिट का हो गया, अच्छा वो 13 साल का हो गया, अच्छा वो 13 हो गया, 15 हो गया. छोटे छोटे माइलस्टोन. फिर पहली बार इसको हम एम्प्टी
पॉलिसी भी बोलते हैं, जब बच्चा कॉलेज जाता है अपने माँ बाप को छोड़ के, वो सबसे बड़ी एंशियसनेस होती है कि हाँ बच्चा दूसरे कॉलेज में गया या दूसरे सिटी में कॉलेज में गया, तो उस समय मम्मी लोग को या पापा को बहुत खालीपन लगता है कि हाँ अरे बाप रे अब तो बच्चा नहीं है, मतलब दोनों के लिए, बच्चों के लिए होता है कि अरे अब तो मम्मी नहीं है कुछ करने को, अब सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, और माँ के लिए होता है अरे अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी अपने बच्चे पे लगा दी। बट स्टिल बच्चे चले जाते हैं, उनको नए फ्रेंड्स मिल जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स आर लाइक दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर देयर वही चाइल्ड। वी आर देयर। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। So parent parenting can be sometimes demanding. Like, so how do you maintain a balance between self care and giving care to your child? ओके, so I love this question because this is my personal favorite. I don't know how many videos I have made for self care. मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है अपना केयर। अगर मैं खुश हूँ मेरी फैमिली खुश होगी, अगर मैं दुखी हूँ और मैं कलपती रह रही हूँ कि मैंने अपना करियर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंटिंग में आएगा, कहीं ना कहीं मैं क्रिब होके अपने बच्चों को बोलूंगी पता है तेरे वजह से मैंने अपना काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ना है भाई? बच्चे ने तो नहीं बोला आप छोड़ दो, वो आपका वो आपकी इच्छा थी, या वो आपने अपने इच्छे से छोड़ा, आपने बच्चे के लिए नहीं छोड़ा। अब बच्चे को आप पूरी जिंदगी कुछ सुनाते रहोगे कि तेरे वजह से मैंने करियर छोड़ दिया, और वो बच्चा उस गिल्ट में हमेशा रहेगा कि हाँ मेरी माँ ने अपना करियर में, वो जरूरत ही नहीं है। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे को ये समझाएं कि बेटा मैं एक करियर वुमन हूँ और मैं ये काम करना चाहती हूँ, साथ में मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बट जब मैं बिजी हूँ तो मैं बिजी हूँ, जब मैं आपके साथ हूँ तो सिर्फ मैं आपके साथ हूँ। तो ये चीज बच्चों को समझाना कि हाँ मेरी, और दूसरी चीज मैं हमेशा कहती हूँ को पेरेंटिंग। अगर आप बिजी हो, हेल्प यार, मतलब हस्बैंड क्यों है, मतलब हस्बैंड है, इन लॉज है, कोई भी फ्रेंड हो, कोई क्लोज फ्रेंड हो। मैंने किया हुआ है, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गए थे, मुझे एक बहुत जरूरी इवेंट के लिए जाना था, मैंने उनको कमिट कर दिया था, तो आई लेफ्ट माई चाइल्ड विद अ फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने बोला कि यार मैं 2 घंटे में आ रही हूँ बट बच्चे को रख ले, क्या प्रॉब्लम है? देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग हेल्प, किसी ने मना नहीं किया। वो आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा एक जन है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। मैं नैनी की बात नहीं कर रही, मैं मेड्स की बात नहीं कर रही, बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसको आप ट्रस्ट करके भेज छोड़ सकते हो अपने बच्चे के लिए 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। तो ये एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश हो, आप खुद घर में आओगे खुश होके आओगे, तो आपका बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ ऐसे मैनेज करती थी। अब मैंने अपनी माँ को देखा, मेरी माँ ऐसे मैनेज करती थी। माय मदर वाज अ वर्किंग वूमन, पूरी जिंदगी मम्मी ने हमें अच्छे से पाला, बट एट द सेम टाइम शी नेवर लेफ्ट हर जॉब। तो मैंने अपनी माँ को काम करते हुए देखा है, तो वो सेम चीज मैंने अपने बच्चों के लिए किया। अब मेरी बेटी यही बोलती है ना, मगर बड़े होकर मुझे भी काम करना है। अगर वो मेरे को घर में देखेगी वो क्या बोलेगी, मेरी मम्मी ने सैक्रिफाइस किया, मुझे भी अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना है। क्यों? Yeah, that's what is prevalent in Indian society. Na? Like mothers go into so much of guilt because of their going to work and their child is alone at home and all. So एब्सोल्युटली, मेरे को तो लगता है माँ लोग को तो कोई गिल्ट होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने अपने लिए जरूरत से ज्यादा किया है तो कोई गिल्ट का मतलब ही नहीं। खुश रहो और खुश रखो, दोनों ही है, खुद भी खुश रहो और yeah, बच्चों को भी like they खुश don't रखो। understand कि अगर वो गिल्ट में रहेंगे या ऐसे फील करेंगे, so they won't be doing any job good. एब्सोल्युटली हाँ, ना वो माँ अच्छा बन पाएंगी ना वो काम कर पाएंगी, वो क्रिब में रह जाएंगे, वो बीच में रहेंगे हम। Yeah. Nice insights. So, like, can you share any particular example of your life where your child might be asked you something, or he might be behaving in some way, he or she might be behaving in some way, and that made you curious, like, okay, so this is how they are living their life, or any lesson that you learned from them? तो ये लेसन नहीं है, ये बड़ा क्यूट सा इंसिडेंट है। तो रिपब ने, मेरे बेटे का नाम रिपब है, तो रिपब ने मेरे से पूछा मम्मा मैं आपके पेट में कितने दिन था? तो मैंने बोला बेटा 9 मंथ्स। अब मेरे को ये समझ नहीं आया कि आया कहाँ से। तो वो सुबह, मतलब इट वाज सैटरडे मॉर्निंग और सुबह का टाइम था। मैंने बोला 9 मंथ्स, अच्छा मैं 9 मंथ्स तक आपकी टमी में था? मैंने बोला हाँ बेटा आप 9 मंथ्स अब मेरे टमी में थी। मतलब मैं 9 महीने तक बिना नहाए रह सकता हूँ क्योंकि 9 मंथ्स में आपके टमी में था, तब तो आप नहीं ला पाए, आप भी अभी नहीं हिला। So I am so curious. I was so surprised by this answer. मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर पाई ये बोला क्या। मेरे पास कोई आंसर नहीं था। फिर मैंने बोला बेटा
पेट के अंदर एक लिक्विड होता है जिससे आप क्लीन होते रहते हो और वो मतलब नरिश होते रहते हो। तो आप मेरे मेरे अंदर हो, आप कवर्ड हो, कोई गंदगी तो नहीं आई। अब यहाँ आप बाहर हो, मतलब वो समझाना या वो क्यूरोसिटी, मैं तो ये बोल सकती थी पागल है क्या दिमाग खराब है, बट yes. And that led me to my another question, like, it's very important how you deal with the questions हाँ, of your child. so it's very important how you answer your child. It gives you a platform that okay, नहीं हमें ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि आप जैसे आंसर करोगे अगली बार बच्चा भी वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा। आपने पूरा ठीक से Sometimes आंसर if दिया you तो don't know the answer, then just you go don't and know the answer. आप ढूंढो आंसर, ढूंढो, हम मिलके ढूंढते हैं, but it's हाँ, better to like always गिव द answer राइट them. आंसर, वो बहुत जरूरी है, बच्चे को सही आंसर देना। फिर हमने पढ़ा कि देखो हम कार्स देखते हैं बाहर कितना पोल्यूशन होता है, धुआं में कितनी गंदगी। अब आप जैसे आप सोप लगा रहे हो, देखो ब्राउन ब्राउन निकला ना, इसलिए निकला क्योंकि वो डर्ट है, वो क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी चीजें, बैक्टीरिया, हमने फिर उस बैक्टीरिया का वीडियो देखा, एक वायरल का वीडियो देखा कि वायरस कैसे होता है, बैक्टीरिया कैसे होता है, हिडन होता है, नहीं दिखता है, किसमें नहाना जरूरी है। तो मतलब वो हमारे लिए एक पूरी बड़ी चैप्टर सा बन गया था, मतलब पूरा सैटरडे हमारा उसी रिसर्च में निकल गया। आपके लिए भी शायद एक नई लर्निंग होगी कि मेरे को पता था कि बेबी अंदर इतना क्लीन कैसे रह पा रहा है, तो एक्चुअली एब्सोल्युटली तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा लाइफ लेसन था, मतलब आई लव दैट, मतलब वो मेरी, मैं वो भूल नहीं सकती। वो अभी आज से 6 महीने पुरानी बात है, बट वो मैं भूल नहीं पाई। since you are like a parent coach and you handle yourself as a mother very well, so if you could give some tips for the mothers who are like very much overwhelmed by their kids question, so how could they address it individually in a better way, in a more, सो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, आप हमेशा अपने बच्चे को एक स्पेसिफिक आंसर दें। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उस हिसाब से आंसर दे, बड़ा है तो उस हिसाब से आंसर दे। पेरेंट्स की आजकल बड़ी मैंने खुद बहुत क्वेश्चंस देखे हैं कि मेरा बच्चा ये समझ ही नहीं पाया, मैंने इतना कुछ उसको समझा दिया, क्यों करना है। आप अपने एक स्पेसिफिक आंसर दो। अगर आप श्योर नहीं हो तो प्लीज टेक एडवाइस, किसी से पूछो कि मैं ये क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर क्या दूं। आप जंप मत करो उसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए, आप उसके माइंड को कंफ्यूज कर, आप उसके माइंड को इतना कंफ्यूज कर रहे हो कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलना है। सिंपल सी because बात है, अगर हम sometimes if we छोटे are subject experts, so we just go with the flow. Okay, okay, we know this, and now we will bombard you with all the information. और भी आंसर, वो जरूरी नहीं है, आंसर देना जरूरी है, बट ऑलवेज रिमेम्बर एक स्पेसिफिक आंसर दीजिए। अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देना है। ये जरूरी है कि आप राइट इन्फॉर्मेशन दो, ये जरूरी है कि क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दो। बच्चा 4 साल का है, मैं उस तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर मेरा बच्चा 7 साल का है तो मैं उस तरह का इन्फॉर्मेशन दूंगी। सिंपल topics like even for that matter private parts or maybe sanitary napkin questions, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे यहाँ है क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस। अब आप ये सोचो कि आपका बच्चा कौन सी एज ग्रुप में फॉल करता है। अगर 5 साल से नीचे का है तो आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर तक इस तरीके से बात करना है। बॉयज अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होती है, गर्ल्स की डिफरेंट ग्रोथ होती है, बॉयज की डिफरेंट होती है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, स्टॉप। 5 से 8 साल का है तो उसके और थोड़ा इन्फॉर्मेशन, आप जब 10 साल के हो जाओगे या 11 साल के हो जाओगे तब आप ये सब देखोगे, ये सब करोगे, वो वाले वैसे इन्फॉर्मेशन। 12 के ऊपर आप ओवर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्योंकि तब तक आपका बच्चा कंप्लीटली मैच्योर हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कब कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। So insightful. So Sati, if you could offer like one piece of advice to someone about to become a parent, what would it be based on your own experiences and learnings? So I would like to give 2 advices. One is सुनो सबकी करो मन की। Okay. It's important to listen to everybody. Why? Because सब लोग कुछ ना कुछ एडवाइस देंगे, हो सकता है उस पीस ऑफ एडवाइस में आपको फायदा मिल जाए, लेकिन जो आपका दिल सही बोले कि हाँ ये सही है मेरे बच्चे के लिए और मैं ये करना चाहूंगी, तो आप करो वही। आपको वो 10 चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको वो एक चीज सोचनी है, वो आपको क्या करनी है। तो सुनो आप सबकी, लिसन टू एवरीबडी, बट डू ओनली वन थिंग व्हिच यू फील इज राइट फॉर योर चाइल्ड। बिकॉज बच्चा आपका है एंड वो हमेशा वो आपका ही रहेगा, तो वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपने बच्चे को नर्चर करें। 10 आदमी 10 चीज बोलेंगे, मैं सुन सबकी रही हूँ, लेकिन कर तो मैं अपने मन की रही हूँ क्योंकि मुझे वही ठीक लगता
है मेरे बच्चे के लिए। मेरे दोनों बच्चे बहुत अलग हैं, अश्विका एज वेल एज रिबब। मैं बोथ चिल्ड्रन आर वेरी डिफरेंट। वो दोनों बच्चों के साथ ईस्ट और वेस्ट वाली पेरेंटिंग चलती है। तो मैं ये नहीं बोल सकती ये स्ट्रैटेजी मेरे दोनों बच्चों के लिए काम आती है, नहीं आती। तो इसलिए आपको हमेशा 10 to 12 स्ट्रैटेजीज मिलेगी, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा है। और सेकेंडली, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। जो आपको एक चीज पसंद है कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। एक चीज जो आपको पसंद है वो हमेशा करते रहना। अगर आपको काम करना पसंद है प्लीज काम करिए। अगर आपको लगता है कि एक कोई आपको पैशन पकड़ना है, जैसे मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है या डांस बहुत पसंद है, वो चीज नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे आधे घंटे करे या वीक में 3 दिन करे, बट वो करना सकते। And if you are not doing something right now, so you can pick it up. स्टार्ट There's no स्टार्ट। ये सोचो कि क्या चीज आपको सुकून देती है, वो चीज सुकून जो चीज है ना, ये सुकून वाले शब्द बहुत जरूरी। इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, इनर हेल्थ, इनर जॉय, वो बहुत जरूरी है। Yeah. So, Swati, thank you very much for joining us. This session is very, very insightful for all थैंक यू our सो audience मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। as an individual. Thank you, Swati, for joining us. We are looking थैंक forward यू to more एंड from you. एवरीबडी। थैंक यू। Thank you.